Hello students, I am Suruchi Jain, your English language teacher. Today I'll explain lesson number 1 of your supplementary reader snapshots. The name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse and it is written by William Saroyan. Students, first let us know what this story is all about. Aram and Murad were two poor boys who belonged to the Armenian Garogalanian family who were known for their honesty since the 11th century. One early morning, when Aram was asleep and was enjoying pleasant dreams, his cousin Murad showed up to his window with a beautiful white horse. Aram could not believe it and was thinking it was a dream. But since there was a little light outside, he knew this for sure that the horse was real. As they were poverty stricken, he couldn't believe that the horse was their own. He was trying to figure out if the horse had been stolen by his cousin. Murad had come to invite him for a ride along. He asked him to make it quick before everyone in the world wakes up. Aram wore his clothes and jumped out of the window and sat behind Murad on the horse. And they rode on the old countryside of the area where they lived, Walnut Avenue. After some time, Murad asked him to get off as he wanted to ride the horse alone. Aram asked him if he could also ride the horse alone just like him, to which Murad said they will see, as it was for his own safety. He got to know that Murad had stolen the horse a month ago and was riding it every morning. When Aram got his chance of a ride, the horse took him to the vineyard and threw him off and ran away. After searching for 30 minutes, Murad finally managed to find the horse and they hid him in the deserted vineyard that had some oats and alfalfa. Murad had a way with everything, especially horses. He knew how to handle every type of animal and also humans. Every morning for 2 weeks, they would take the horse for a ride and then hide it again. One day, John Byro came to Aram's house to talk to his uncle Khosrow, who was an irritated and loud man who shouted at almost everything. Byro told him about his missing horse, whom he bought at $60. For 1 month, he couldn't find it and he walked for 10 miles to come to their house. Khosrow roared at him and told him, "It's no harm, pay no attention to it." Byro became irritated by his attitude and he went away. Aram went to Murad and told him about the missing horse of Byro and asked him not to return the horse until he learns to ride it. Murad told him that it would take 1 year for him to learn to ride the horse. And he further angrily added that they could not be thieves as their tribe is known for honesty, and said that they would return the horse after 6 months. One day on their way back to hide the horse to the hidden spot, they met John Byro, who was going back to the town. He talked to them and carefully examined the horse. He admitted that the horse looked exactly like the one he had, but since he knew his parents and the honesty of their family, he didn't believe that they had his missing horse. He assumed it was a twin horse. Murad managed to let Byro assume that it was not his horse, so they went away. The next morning, both of them took the horse back to Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed them all along quietly and they left the place. The same afternoon, John Byro came back to his house to tell his mother about his horse who had come back. He was happy and was astonished to see the horse's better temper, and it was stronger than ever. Uncle Khosrow again roared, "Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it." And now, students, I have already given you what this story is all about. Now I will explain the story line by line in Hindi also. See students, as this chapter is quite lengthy,
So to make it easier and more comfortable, I have divided this chapter into a few paragraphs. Now let us start with the first one. I'll start from one day back there in the good old days till enough for me to know I wasn't dreaming. So one day, this 9-year-old boy Aram was asleep and was in the world of extremely beautiful imagination. His life was pleasant and kind of, in a mysterious dream. His cousin Murad showed up on the window of his room at 4 in the morning. He called Aram, who jumped out of his bed and still couldn't believe what he saw out of the window. It was dawn and there was light enough outside to make him see outside. What made him believe he wasn't dreaming? अब I'll explain you in हिंदी also. अब एक बारी जो 9 years का जो ये बच्चा है अरम, वो सो रहा था और सुबह के 4 बज रहे थे. सुबह सुबह उसका जो कज़न है, एक और दूसरा कज़न उसका मुराद, वो उसकी खिड़की पर आता है. सुबह सुबह 4 बज रहे थे, पूरी तरीके से रोशनी नहीं थी, लेकिन इतनी रोशनी थी कि अरम को समझ में आ जाए कि सामने उसके क्या था. उसके सामने अब आगे हम पढ़ेंगे दैट देयर वाज अ ब्यूटीफुल हॉर्स, वाइट हॉर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. अब वो बोलता है कि सुबह सुबह मतलब उसको जब वो सामने देखता है अरम को, अपने अरम देखता है कज़न को, अपने मुराद को सामने 4 बजे के करीब, तो वो अपनी आंखें मलता है और सोचता है कि अरे इतना तो उसे समझ में आ रहा था कि वो सपना नहीं देख रहा है. एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद द सेकंड पैराग्राफ. माय कज़न मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स टिल दिस वाज द वंडरफुल पार्ट. Now Murad was sitting on a white horse. Aram rubbed his eyes and stuck out of his head out of the window. Murad assured him it was not a dream. He asked if he wanted to ride. He must make a quick. Murad was the type of a person who enjoyed being alive, but he couldn't believe that he was seeing a horse in front of him. Aram's earliest memory was of horses and he always wanted to ride one. This was the wonderful part, that he was actually going to ride a horse for real. अब मुराद जो है वो देखता है सामने और मुराद को देखता है वो वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ, तो अरम जो है अपनी आंखें मलता है और देखता है कि अरे वो कोई सपना तो नहीं देख रहा. मुराद उसको श्योरिटी देता है, उसको एश्योर करता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा, और उसको बोलता है कि अगर उसे हॉर्स राइडिंग करनी है तो उसे बहुत जल्दी एकदम से फटाफट आना पड़ेगा, इससे पहले कि पूरा दिन निकल जाए और बाकी के लोग जो है वो उठ जाएं. अब जो है उसका जो अरम था उसका शुरू से ही एक मतलब उसको कहते हैं ना बचपन से ही उसको हॉर्सेस बहुत पसंद थे और उसको शुरू से ही मन था बहुत ज़्यादा कि कभी ना कभी वो हॉर्स राइडिंग कर पाए, हॉर्स के ऊपर, रियल हॉर्स के ऊपर राइड कर पाए. In the second place, we were poor. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. Till none of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. Now, Aram's family was poor and had no money, so it was difficult for him to believe in what he saw outside his house. He belonged to the Garugalanian family that was strictly in poverty. They didn't even know how they managed to get food for themselves every day. Although his tribe was poor, they were known for their honesty for 11 centuries. They were honest, proud, and always believed in right and wrong. No one from their family would ever steal anything or would take advantage of anyone in the world. अब जो अरम की जो फैमिली है, पहला उसने बताया कि उसका हमेशा से एक सपना था कि वो रियल हॉर्स के ऊपर कभी राइड कर सके. दूसरी बात, अरम को ये रियलाइज़ होती है, वो उसको पता था कि वो लोग इतने पुअर हैं बिकॉज अरम जो था, अरम, मुराद, ये लोग गैरुगलेनियन एक ट्राइब का नाम है उसको बिलोंग करते थे, जो कि बहुत पुअर ट्राइब थी. उनको खुद नहीं पता था कि पूरे वो डेली के डेली अपना खाने पीने का सामान का भी कहते हैं ना कैसे वो इकट्ठा करते हैं, कैसे वो मैनेज करते हैं रोज़ का खाना भी अपना. तो ऑल्दो हिज ट्राइब वॉज पुअर, हालांकि उनकी जो ट्राइब थी वो पुअर थी, बट दे वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी फॉर 11 सेंचुरीज. 11 सेंचुरीज से उनका नाम था. ऑनेस्ट वो थे, उन जो गैरुगलेनियन ट्राइब के जो लोग थे वो बहुत ऑनेस्ट थे. अरम सोचता है कि गैरुगलेनियन फैमिली
को जो बिलोंग करते हैं लोग, वो कभी कुछ चोरी कर ही नहीं सकते और ना ही कभी किसी का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, which starts from consequently, even though I could see the horse so magnificent, till there was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. Now, in this paragraph, Aram was so excited that he was seeing a horse that was so pleasant and beautiful. He could smell it and hear it breathing, and still couldn't believe that Murad or anyone in the family could afford a horse. He was thinking if Murad had stolen the horse, but he didn't believe it, as he thought no one in the family could be a thief. He stared at his cousin and then at horse. There was religious motionlessness and wittiness in both Murad and the horse, as one charmed him and the other scared him. अब जो अरम के मन में अभी भी मतलब कन्फ्यूजन थी, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका कज़न मुराद अगर हॉर्स लेकर भी आया, वो भी इतना सुंदर जिसको वो स्मेल कर सकता था, उसको सांस लेते हुए उसकी सांसों की आवाज़, वो उसकी ब्रीदिंग की आवाज़ वो सुन पा रहा था अरम. तो उसको विश्वास ही नहीं होता कि उसका कज़न के पास ये आया, तो आया कैसे. एक बारी तो उसके मन में आता है कि वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुराद कहीं से चोरी करके लाया हॉर्स, लेकिन फिर वो जो है उसके दिमाग में फिर से ये बात आती है दैट बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू गेरोगलेनियन ट्राइब. तो वहाँ वो वाले ट्राइब के लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते, उनमें से कभी कोई चोर हो ही नहीं सकता. अब वो कभी एक टक कभी कज़न को देख रहा था, कभी उस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को देख रहा था. अब दोनों में मतलब दोनों को जब वो देख रहा था, उसको एक ना मोशनलेसनेस, यानी दोनों स्टिल खड़े हुए थे. अब एक जो मुराद है, मुराद को देखता था, हॉर्स को देखता था, तो उसको बहुत वो डिलाइटेड फील होता था उसको. और जब वो अपने कज़न मुराद को देखता था तो वो डर भी लगता था कि कैसे उसके ऊपर चले तो जाए हॉर्स के ऊपर, कहीं उसने चोरी ना किया. एंड नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, which starts from Murad, I said, where did you steal this horse? Till I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. Now Aram asked Murad if he had stolen the horse. Murad replied, if he wants to ride, he must jump out of the window. Aram was convinced that the horse was stolen by Murad. अब जब वो जो अरम है वो मुराद से पूछता है कि उसने ये हॉर्स जो है उसने चुराया है, कहाँ से चुराया है, तो मुराद उस बात का तो कोई रिप्लाई नहीं करता. उसको इतना वो रिप्लाई करता है कि अगर उसे हॉर्स राइडिंग करनी है तो फटाफट से खिड़की से कूद करके, विंडो से कूद करके वो एकदम हॉर्स पर जंप लगा दे. अब अरम जो है इस बात पे कन्विंस हो जाता है, उसको यकीन हो जाता है कि मुराद जो है वो जो हॉर्स है, वाइट जो ब्यूटीफुल हॉर्स है, वो कहीं से चोरी करके लाया है. He came to visit him to ask him to ride it with him. Aram tried to convince himself that it was not the same as stealing money, as they both were so crazy about riding a horse. अब देखो, जैसे हम लोग में ये आदत होती है ना ह्यूमन बींग्स में, जब हमें पता होता है कि कोई चीज़ गलत है, लेकिन अगर हमारा मन भी कर रहा होता है वो काम करने का, तो हम अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर सेम जो है अरम भी करता है. वो सोचता है कि उसको समझ में तो आ जाती है कि ये जो मुराद है वो ये हॉर्स कहीं से चोरी करके लाया है, लेकिन क्योंकि अरम और मुराद बोथ ऑफ देम वर क्रेजी अबाउट राइडिंग अ हॉर्स, तो वो अपने आप को कन्विंस करता है अरम कि अरे ये पैसे चोरी करने के बराबर वाली चोरी नहीं है, क्योंकि उसे कौन सा आगे हॉर्स को कहीं पर बेचना था, उसे तो हॉर्स को बेचना ही नहीं था. He thought that it would not be called stealing until they decide to sell it, which they would never do. वही मैंने आपको बताया कि वो सोचता है कि ये कोई चोरी इसीलिए नहीं मानी जाएगी. आराम ये सोचता है हॉर्स की चोरी, ये चोरी वैसे चोरी नहीं मानी जाएगी क्योंकि हमें कौन सा आगे उसे बेचना है. Aram said he will wear some clothes and come outside. He jumped down to his yard from his room's window and sat on the horse behind his cousin. अब वो आराम जो है वो बोलता है मैं फटाफट से कपड़े चेंज करके आता हूँ, और वो कपड़े चेंज कर कर आता है और जंप लगा देता है उसकी तरफ, और वो अपने हॉर्स के ऊपर बैठकर अपने कज़न के पीछे और वो निकल जाता है राइडिंग के लिए. Now coming up to the next paragraph, it starts from that year we lived at the edge of town on Walnut Avenue till it is no harm, pay no attention to it.
Now, Aram lived, at the edge of the town on Walnut Avenue. There were orchards, vineyards, irrigation ditches, and country roads behind his house. I want to tell you the meaning of orchards. I hope you people know the meaning of orchards. Meaning of orchards is a piece of land of the plantation of fruits, जिसे हम हिंदी में बगीचे भी बोलते हैं. Irrigation ditches means man-made channel used to deliver water to homes, industries and other uses. जैसे आपने छोटे छोटे वो जो पानी से भरे हुए वो नाले देखे होंगे जो खेतों के पास चलते हैं ताकि वो इरिगेशन पर्पस के लिए, उसको इरिगेशन डिचेस बोलते हैं. Now here now the story is like Aram lived at the edge of the town on Walnut Avenue. There were orchards, vineyards, irrigation ditches and country roads behind his house. They were on Olive Avenue within 3 minutes and the horse started to proceed. अब वो बोलते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि आरम जो है वो टाउन के जो आउटर यानी एज उस पर रहता था, वॉलनट एवेन्यू में वो रहता था. अब जो उसके घर के पीछे बहुत सारे बगीचे थे, वाइन यार्ड्स थे. वाइन यार्ड होते हैं प्लांटेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स विच आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग. तो वहाँ पर उसके घर के पीछे वाइन यार्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थी और रोड्स थी बहुत सारी. अब 3 मिनट के अंदर वो जो वाइट हॉर्स था उस पर बैठते हुए वो लोग ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए. एंड द हॉर्स स्टार्टेड टू प्रोसीड, और हॉर्स आगे बढ़ने लग गया. द एयर फेल्ट न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. Aram felt wonderful sitting on the horse which was running. Murad started singing loudly, who was considered one of the craziest members of the family. अब जब वो आरम जो था उसके पीछे बैठा हुआ था अपने कज़िन मुराद के, वो इतना मज़े लेकर के उसको इतनी ठंडी ठंडी हवा, उसे बहुत मज़ा आ रहा था ठंडी ठंडी हवा में सांस लेते हुए, हॉर्स के पीछे राइडिंग करते हुए. और उतने में बताता है कि आरम बताता है कि मुराद ने जो है ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया. जो मुराद था वो उनकी फैमिली में से एक, जो कहते हैं सबसे क्रेज़ीएस्ट, झक्की जिसे बोलते हैं या सन की बोल दो, तो वो क्रेज़ीएस्ट मेंबर था उनकी फैमिली का. There is one crazy person in every family and Murad was the one natural descendant of a crazy race in their tribe. अब बोलते हैं कि उनकी जो गैरोक्लेनियन जो ट्राइब थी उनमें ये एक कहते हैं ना एक यूनिक एक फीचर था कि हर फैमिली में कम से कम एक क्रेज़ी पर्सन ज़रूर होता था और उनकी ट्राइब में, और मुराद उनमें से एक था. बिफोर मुराद वॉज अंकल खॉजरोव. Murad was Uncle Khosrow. Uncle Khosrow was, a huge man with black hair and largest moustache in the valley. अब मुराद से पहले कौन था जो क्रेजीएस्ट पर्सन उनकी ट्राइब का, वो था अंकल खॉजरो. अंकल खॉजरो एक खूब जायंट सा, एकदम ह्यूज सा आदमी था, एकदम काले उसके बाल और वैली में सबसे बड़ी सबसे लंबी उसकी मूछें थी. He had an energetic temper and was impatient, which was irritating. बहुत ही इरिटेटिंग फेलो था वो, इतनी जल्दी गुस्सा हो जाता था, हर बात पे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था वो. He used to make anyone stop talking by roaring and say, "It is no harm, pay no attention to it." उसके सामने कोई बात कर रहा होता था, वो हमेशा हर बात के लिए एक ही बात बोलता था ज़ोर से चिल्ला करके कि इट इज़ नो हार्म, ये बात को यहीं ख़त्म करो, इसको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला इससे. और ज़ोर से दूसरे बंदे को वो चुप करा देता था बोल कर. Now coming up to the next paragraph, which starts from, "That was all, no matter what anybody happened to be talking about, till we let the horse run as long as it felt like running." Now Uncle Khosrow was always this rigid, no matter what happened to be talking about in front of him. अब ये जो पैराग्राफ है उसमें अंकल खॉसरोव के जो यूनिक फीचर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो डिस्क्राइब किए गए हैं. कैसे थे अंकल खॉसरोव. अब उनके सामने कोई भी बोले, कुछ भी बात करो, मतलब वो एकदम कहते हैं ना रिजिड टाइप के थे, वो अब अपने आगे किसी की नहीं सुनते थे. Once his own son Arav came running to him when he was getting his moustache trimmed at the barber's shop. He told him the house was on fire, to which he roared and said the same dialogue. अब एक बारी वो अपनी मूछें ट्रिम कराने के लिए बार्बर की शॉप पर बैठे थे अंकल खॉसरो. उतनी देर में उनका जो बेटा है आरव वो भागता हुआ आया और उसने बताया कि घर में आग लग गई है. इतना सुनना था कि अंकल खॉसरो ने वो ही सेम डायलॉग जो मैंने आपको बताया था कि पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ ऑफ नो हार्म, डायलॉग बोल दिया. बार्बर वॉज ऑल्सो अम्यूज्ड and tried to talk to him about it, but as usual Khosrow roared again and did not pay attention to it.
अब बार बार भी उसे बोलता है कि देखो सुनो अंकल खसरफ, देखो आपका बेटा बोल रहा है आपके घर में आग लग गई है, लेकिन वो एज यूजुअल खसरफ की जो आदत थी अपने आगे किसी की सुननी नहीं, उसने चिल्ला करके फिर वही डायलॉग उसे बोल दिया. Now Khosrow roared again and did not pay attention to it. Murad was considered to be a natural descendant of this man, but he was not his son. मुराद जो था वो ठीक उसी का ही कहते हैं ना, नेचुरल डिसेंडेंट, यानी उसी के अंकल खसरफ के बाद मुराद था जिसमें वो क्रेज़ी वाला जो ट्रेट था वो आया था इनकी ट्राइब में. अब उसके हालांकि वो उनका बेटा नहीं था, मुराद अंकल खसरफ का बेटा नहीं था. His father was Zorab, who was a practical person. मुराद के फादर का नाम जोराब था and he was quite a sane person. वो प्रैक्टिकल आदमी थे, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई क्रेजी ट्रेट नहीं था उनमें. A child could look like his father, but doesn't mean he gets his nature and attitudes just the same. अब आगे जो है अरम ने बहुत अच्छी बात बोली है. अरम बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं चाइल्ड कोई बच्चा अपने फादर की तरह बिल्कुल दिख ज़रूर सकता है, बट लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और ऐसा अक्सर नहीं होता है कि ठीक उसके अपने फादर जैसी नेचर या एटीट्यूड भी उस बच्चे का हो. लुक ज़रूर सेम हो सकती है, आदतें नहीं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन देयर ट्राइब्स, मूडी एंड विदाउट एनी सेटल्ड वर्क और होम. अब आपने दो वर्ड्स लाइन में पढ़े होंगे, दैट हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट. कैप्रिशियस मीन्स जो फिकल माइंडेड लोग होते हैं, जो पल में कुछ सोचते हैं, पल में कुछ करते हैं ना, दे आर इनकन्सिस्टेंट, दे हैव इनकन्सिस्टेंट चेंजेस ऑफ मूड. एंड वेग्रेंट इज़ अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और वर्क, जिसका कोई परफेक्ट मतलब एक सेटल्ड घर या कोई एक ठिकाना या काम नहीं होता, कोई एक, वो बदलते रहते हैं अपने काम. तो उसके उनके भी ट्राइब में ऐसे बहुत सारे लोग थे, फिकल माइंडेड, कैप्रिशियस और वेग्रेंट. अभी वो आगे बोलता है कि they were still riding the horse and Murad was still singing loudly. They were still in the countryside where according to their neighbors they belonged to. अब वो बोलते हैं कि वो लोग अपना घोड़े पे घूमते हुए, वाइट हॉर्स पर घूमते हुए, मुराद अभी भी ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा था और वो वहाँ पर अभी भी उसी कंट्री साइड में थे जहाँ के लोग उन्हें बताते थे कि वो लोग यहाँ उस कंट्री साइड को बिलोंग करते हैं, वो लोग वहीं पर ही घूम रहे थे. And now I'll continue with the next paragraph which starts from, at last my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. Till my cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned, dripping wet. Abhi Murad asked Aram to get down as he wanted to ride alone. अब आगे जब वो कंट्री साइड अपने हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, मुराद एक जगह रुकता है और उसे बोलता है आराम को कि अब तुम नीचे उतरो, मैं हॉर्स राइडिंग, अब ये हॉर्स को जो मैं अकेले राइड करूँगा. आराम asked if he could ride the horse alone. He said it is up to the horse if he wants to ride you along and asked him to get Murad down again. अब वो जब आराम बोलता है कि क्या वो भी अकेले बिना मुराद के बैठे अकेले हॉर्स राइडिंग कर सकता है, तो बोलता है कि ये मैं क्या बताऊँ, ये तो हॉर्स के ऊपर है, अगर वो अलाउ करेगा, अगर वो चाहता है कि तुम अकेले राइड करो तो वो करने देगा. और फिर उसे वो बोलता है कि अब मुराद उसको नीचे उतरने को बोलता है ना, इफ़ ही वांट्स टू राइड यू अलॉन्ग एंड आस्क्ड हिम टू गेट मुराद डाउन अगेन. Aram tried to convince him that the horse would let him ride, to which Murad said that we shall see, and told Aram that he had a way with the horse. He had a way with the horse. इसका मतलब है कि उसे हॉर्स को कहते हैं ना ठीक से कन्विंस करना, उनके साथ उनको टैकल करना. He had a way with the horse मतलब हॉर्स के साथ हॉर्स को टैकल करना उसको मुराद को बहुत अच्छे तरीके से आता था. अरम टोल्ड हिम दैट ही हैड इट टू. अब जब अरम बोलता है कि नहीं हॉर्स अलाउ करेगा मुझे अकेले राइड करने के लिए, तो मुराद बोलता है कि उसको तो बहुत अच्छे से हॉर्स को टैकल करना आता था. अब आगे अरम भी बोलता है मुराद को कि उसे भी बहुत अच्छे से आता है हॉर्स को टैकल करना. मुराद टोल्ड हिम टू गेट डाउन एंड सेड इट इज़ फॉर हिज ओन सेफ्टी, लेट अस होप सो. अरम गॉट डाउन वाइल टेलिंग हिम दैट ही विल राइड द हॉर्स अलोन. अब अरम जो है नीचे उतर जाता है, लेकिन वो मुराद को फिर भी बोलता है कि याद रखना कि मुझे भी जो है राइड करना है हॉर्स को अकेले. मुराद kicked his heels in the horse and shouted run to him. The horse stood on its hind legs, breathed out and ran into a speed. Murad raced the horse across a field of dry grass and irrigation ditches.
When they arrived 5 minutes later, they were wet. अब जो है वो नाम भी लेता है, यहाँ पर हॉर्स का नाम भी दिया हुआ है, उसको एकदम अपने पैरों से वो किक करता है और उसको बोलता है विज़ायर, उसको ज़ोर से बोलता है। और इतनी देर में हॉर्स जो है खूब वो हिंड लेग्स यानी जो अपने पीछे की, यू कैन सी द पिक्चर, इट इज़ वेरी वेल शोन इन द पिक्चर। वो अपने जो हिंड लेग्स यानी पीछे की लेग्स पर वो खड़ा हो जाता है और एकदम से ज़ोर से आवाज़ करता है और तेज़ी से मुराद को लेके घोड़ा जो है भाग जाता है। 5 मिनट बाद वो लोग जब वापस आते, वो फील्ड्स, ड्राई ग्रास फील्ड से होते हुए इरिगेशन डिचेस के अंदर भागते हुए जब वो 5 मिनट बाद वापस आते हैं तो वो लोग भीगे हुए होते हैं बिल्कुल, मुराद और हॉर्स। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, टिल इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। Now the sun was almost up and Aram told him that it was his turn to ride. अब जब वो लोग वापस आते हैं तो अरम अब ऑलमोस्ट जब पूरी तरीके से जो था वो सन निकल चुका होता है, पूरा दिन निकल चुका होता है और अरम उसे याद दिलाता है कि अब उसकी बारी है अब हॉर्स राइड करने की। मुराद got off and Aram sat on the horse. He was fearful and the horse did not move. अब अंदर से तो अरम डरा हुआ था, हालांकि उसने मुराद को कहा था that you also has the way with हॉर्स, उसको भी टैकल करना आता है अच्छा ऐसे हॉर्स को, लेकिन ऐसा होता थोड़ा ही है। तो वो डरा हुआ होता है अंदर से, वो उसको वैसे ही किक करने की कोशिश करता है जैसे पहले मुराद ने किया था, लेकिन हॉर्स तो हिलता ही नहीं है। मुराद ट्राई टू गाइड हिम बाय सेइंग दैट ही शुड ट्राई टू किक इनटू हिज मसल्स एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड हरी बिकॉज दे नीड टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीवन वोक अप। अब मुराद उसको बोलता है कि उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि अब जो वो किक मारे उसकी मसल्स के अंदर, और उसको वो वॉर्न भी करता है, उसको बताता है कि उसे बहुत जल्दी ये करना है क्योंकि सबके उठने से पहले उसको ये जो वाइट हॉर्स है उनको वापस लेकर के जा रहा है। Aram kicked into the muscles of the horse, to which the horse again raised and breathed out. The horse began to run and Aram didn't know what to do next. The horse started going towards the road that leads to the vineyard of Dikran Halebian. It began to move over vines and Aram fell down. अब क्या होता है, वैसे ही वो जैसा मुराद ने उसको बताया होता है, वो जैसा हॉर्स की मसल्स पे किक करता है और फिर से हॉर्स वैसी आवाज़ करता है और ज़ोर से भागना शुरू कर देता है। और अब अरम को समझ में ही नहीं आता, उसको तो पता ही नहीं उसको कैसे टैकल करे। वो भागता चला जाता है, अरम को समझ नहीं आता उस पर आगे करे तो करे क्या। वो वाइन यार्ड से होता हुआ और एकदम ज़ोर से भागता है और अरम उतनी देर में गिर करके नीचे आ जाता है। द हॉर्स कंटिन्यू टू रन एंड मुराद केम रनिंग डाउन द रोड टूवर्ड्स हिम। अब लेकिन क्या होता है, अरम तो गिर गया लेकिन हॉर्स भागता चला जाता है। मुराद भागा जो है वो रोड की तरफ उनके पास आता है। मुराद टोल्ड हिम दैट ही इज़ नॉट वरीड अबाउट हिम बट दे नीड टू फाइंड द हॉर्स। अब देखो थोड़ा सा ऐसा फ़नी सा वो एक एटमॉस्फेयर देने के लिए यहाँ पर लिखा है कि मुराद उसे बोलता है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है लेकिन हमें हॉर्स को ढूंढना है। वैसे मुराद जो था वो हॉर्स को ढूंढने के लिए इसीलिए परेशान था बिकॉज इट वॉज अ स्टोलन हॉर्स। दे बोथ वेंट डिफरेंट वेज टू फाइंड हिम। ही इंस्ट्रक्टेड आरम टू बी काइंड इफ़ ही सॉ हिम एनीवेयर। अब दोनों अलग अलग वेज़ में यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं हॉर्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो दोनों डिसाइड करते हैं कि तुम एक तरफ जाओ दूसरी डायरेक्शन में, मुराद एक डायरेक्शन में, मुराद दूसरी डायरेक्शन, और अरम जाएगा। और मुराद उसको बोलता है कि अरम को इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर तुम्हें वो दिखता है कहीं रास्ते में तो उसके साथ बहुत काइंडली जो है बिहेव करना है, उसको काइंडली टैकल करना है। द नेक्स्ट coming up to the next paragraph which starts from I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch till because he knew how much I longed to ride. अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरम और मुराद दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं हॉर्स को ढूंढने के लिए। आरम लुक फॉर द हॉर्स डाउन द रोड एंड मुराद वेंट टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच। अब आरम रोड की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, और मुराद इरिगेशन डिच की तरफ जाता है हॉर्स को ढूंढने के लिए। He came back after 30 minutes with a horse. He told him to jump over as the whole world was awake by then. अब मुराद जो है वो आधे घंटे बाद वापस हॉर्स के साथ उसको आता हुआ दिखता है। अब वो एकदम से उसको बोलता है कि फटाफट, आराम को बोलता है फटाफट से चढ़ करके घोड़े पे बैठो क्योंकि पूरा सारे लोग जाग चुके थे, तब तक पूरा दिन निकल गया था। आरम asked what would they do now, to which Murad told him about two options: take him back or hide him until tomorrow.
अब आरम उससे पूछता है मुराद से, अब क्या करने वाले हैं अब हम घोड़े के साथ। तो मुराद जो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, वो था हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो घोड़े को वापस ले जाएं या उसको कल तक छुपा करके रखें ताकि हम दोबारा से हॉर्स राइड कर सकें। Murad was not worried and Aram knew that Murad would hide him somewhere and not take him back for a while. Aram asked him where Murad would hide him. Murad told him about a place he knew which would be perfect as a hidden spot. अब आरम उसको पता था कि ये अभी उसको वापस नहीं करने वाला, उसको छुपा कर ही रखने वाला है। तो उससे पूछता है कि कहाँ पर उसको वो छुपा करके रखेगा। इस पर मुराद उसे बोलता है कि मेरे पास है एक जगह, मैं जानता हूँ जहाँ पर हम हॉर्स को अच्छे से छुपा कर रख सकते हैं। Aram eagerly asked him when he stole the horse. It appeared to him that Murad had been taking the horse for morning rides for quite some time, and he showed up this morning to ask. Aram to ride along because he knew he was longing to ride one. अब आराम को उससे जब वो आराम पूछता है मुराद से कि उसने कब ये घोड़ा चुराया, तो आराम से उसकी बातों से ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसने ये हॉर्स जो है कहीं से चुराया था। अभी उसने बताया नहीं है कहाँ से। तो वो कुछ दिन मॉर्निंग राइड्स पर जाया करता था सुबह सुबह, जबकि सारे लोग उठे नहीं होते, बहुत अर्ली मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग वो इसीलिए आया था आरम के पास मुराद हॉर्स लेकर के, क्योंकि उसको पता था मुराद को कि उसका कज़न आरम, उसको बहुत शौक है हॉर्स राइडिंग का। Now coming up to the next paragraph, it starts from, who said anything about stealing a horse? He said, till at first I wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I wanted to do. Horses understand me. Now Murad shuts him down by asking a counter question about who talks about stealing a horse. Aram tried to change the question by asking him, since how long was he riding the horse every morning? Murad told him that morning was the first time. अब देखो मुराद उल्टा उसी से ही बोलता है कि तुम्हें किसने बोला कि ये घोड़ा जो है चुराया हुआ, ये हॉर्स चुराया हुआ, किसने बोला कि ये हॉर्स किसी कहीं से चोरी हुआ है? तो आरम अपना क्वेश्चन चेंज कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तुम हॉर्स राइडिंग सुबह सुबह कितने दिनों से कर रहे हो? तो मुराद उसको जो आंसर देता है वो बोलता है कि आज सुबह पहली बार मैं निकला हूँ इस हॉर्स को लेकर के। बट आरम वॉज नॉट कन्विंस्ड एंड आस्क्ड हिम इफ ही वाज टेलिंग द ट्रुथ. मुराद सेड, इफ एनीवन आस्क्ड आरम ही शुड से दैट इट वाज ट्रू. अब आगे देखो कितना मज़ेदार वो जवाब देता है। आरम जो है वो कन्विंस नहीं होता, उसको यकीन नहीं होता कि पहले दिन निकला है। तो वो उससे बोलता है कि क्या तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो? तो मुराद इस पर बोलता है कि इस बात पर तो वो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन आगे वो आरम को इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ये घोड़ा तुम कब से राइड कर रहे हो, तो तुम यही जवाब दोगे कि आज फर्स्ट डे. एंड ही फर्दर एडेड दैट ही डिडंट वांट देम टू बी लायर्स बट दे हैड टू से ओनली दिस. अब आगे वो बोलता है मैं चाहता भी नहीं कि कोई हमें झूठा बोले, हमें लायर बोले, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछता तो तुम्हें बोलना भी यही है. Aram agreed and Murad walked the horse quietly towards the barn of a deserted vineyard. It belonged to a farmer named Fetwajian. अब जो मुराद है और आरम वो दोनों हॉर्स को लेकर के चलते हैं और एक डिजर्टेड वाइनयार्ड में, एक बान जहाँ पर जो एनिमल्स के जो खाना है वो स्टोर करके रखा जाता है, जो कि फील्ड्स में पाया जाता है, तो स्टोर रूम की तरह होता है. तो वहाँ पर वो लोग एक डेजर्टेड यानी एक ऐसा अकेला सा सुनसान सा वाइनयार्ड था, वहाँ पे बान में जा कर के वो ले जाते हैं. वो एक फार्मर का होता है जिसका जो है नाम यहाँ पर दिया हुआ है फेटवजियन. द बान हैड सम ओट्स एंड एल्फा. दे स्टार्टेड वॉकिंग होम. मुराद टोल्ड आरम दैट इट वाज नॉट ईजी टू गेट द हॉर्स टू बिहेव नाइसली एज इट वांटेड टू रन वाइल्ड एट फर्स्ट. अब वो लोग वहाँ पर उसको छोड़ करके, हॉर्स को छोड़ करके वो लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं. वहाँ पर एक्चुअली ये बताया है द बान हैड सम ओट्स एंड एल्फा. बान में ये चीज़ें थी, ओट्स और एल्फा वहाँ पर रखे हुए थे. अब मुराद जो है वो आरम को बताता है कि ये जो हॉर्स राइडिंग है, हॉर्स को कंट्रोल में रखना कोई आसान बात नहीं है. हॉर्स से अच्छे से नाइसली वो बिहेव करे, इसके लिए कोई ईजी बात नहीं है, क्योंकि हॉर्स एक वाइल्ड वो होते हैं, तो वो लोग एकदम से वाइल्डली जो है भागना शुरू कर देते हैं, तो उनको कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं है. मुराद जो है वो आरम को दोबारा से बोलता है कि ही हैड अ वे विद द हॉर्स. वो हॉर्सेस को बहुत अच्छे से जानता है एंड ही कुड गेट देम टू डू वॉट एवर ही वांट्स टू. वो जो कराना चाहे हॉर्सेस से करा सकता है. और वो आगे बताता है क्योंकि हॉर्सेस अंडरस्टूड हिम, हॉर्सेस उसको समझते थे.
वो ऐसा उसको बताता है. And now I'll continue with the next paragraph. It starts from, "How do you do it?" I said, "Till, haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" Now, here Aram amusingly asked him how he controlled the horse, to which Murad said he has an understanding with the horse. Aram asked him what sort of understanding did he have with him, to which Murad told him a simple and honest one. अब वो उससे पूछता है Aram because Aram was very curious to know how he understood. Murad understands the horses very well. तो अब वो उसको Aram उससे पूछता है कि भाई तुम हॉर्सेस को कैसे कंट्रोल करते हो इतने अच्छे तरीके से. तो मुराद बोलता है कि बहुत अच्छे से मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, उनको समझता हूँ हॉर्सेस, और हॉर्सेस उसको अच्छे से समझते थे. तो उसने बोला कि कैसी अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के बीच में. तो उसने वो बताता है कि अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन. Aram confessed he would also like to know how to have an understanding with a horse. Murad assured Aram by saying that he is still a small boy. He will learn when he'll be 13. It shows कि मुराद जो है वो 13 years old था. Aram was 9 years old and Murad was his cousin and he was 13 years old. तो वो मुराद जब Aram बोलता है कि कैसे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कैसे बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग हॉर्सेस के साथ, तो मुराद बोलता है कि अभी तुम छोटे हो, जब तुम 13 years के जब तक होगे तब तक तुम भी समझ जाओगे सब कुछ. Aram went home and ate breakfast. That day his uncle Khosrow visited his house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor and was remembering the old country when a person came to visit him. He was John Byro, a farmer who learned to speak Armenian because of loneliness. His mother bought Byro some coffee and tobacco. He sipped and smoked and told them about his missing white horse who was stolen last month and he is not able to find it. Khosrow roared again that it's no harm and shouted that why he was crying over a lost horse when they had lost their homeland. अब जो आरम है वो वापस आता है और अपने घर आकर के वो आराम से ब्रेकफास्ट करता है. अब उस दिन आरम के घर उसके अंकल खॉसरव, जो कि मैंने जिनके बारे में पहले आपको डिस्क्राइब किया था, ही वॉज द क्रेजीएस्ट पर्सन इन देयर ट्राइब. तो उस दिन उनके अंकल खॉसरव उनके घर विज़िट करते हैं फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स. और वो घर के पार्लर एक्चुअली मीन्स अ सिटिंग स्पेस इन अ हाउस. तो वहाँ पर खुले आंगन में वो जाकर के एक रूम में या तो खुले आंगन में जाकर के वो बैठ जाते हैं. और अभी वो अपने ख्यालों में कुछ खोए होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं कि उतनी देर में उनसे एक आदमी मिलने के लिए आया होता है. और वो कौन आदमी होता है? ही वॉज जॉन बायरो वॉज हिज नेम. ही वॉज अ फार्मर. ही लर्न्ड टू स्पीक आर्मेनियन बिकॉज ऑफ लोनलीनेस. अब उसने ये जो आर्मेनियन लैंग्वेज थी वो सीखी थी ताकि वो और लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन कर सके, and because of his loneliness. His mother bought Byro some coffee. और जो आरम की मदर होती है वो अंकल ये जॉन बायरो के लिए कुछ कॉफ़ी टोबैको ये सब के लेकर के आती है. और वो आगे जो जॉन बायरो है वो अपने वाइट हॉर्स के बारे में बताता है जो कि मिसिंग था पिछले महीने से और वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था. लेकिन इतनी बात सुनते बिकॉज खॉसरोव एज हिज नेचर वॉज, वो एज़ यूजुअल वो ज़ोर से चिल्लाता है कि पे नो अटेंशन टू इट. अब तुम सिर्फ एक घोड़े के पीछे, एक हॉर्स के पीछे इतना रो रहे हो, इतना झिक कर रहे हो, और यहाँ देखो तुमने तो अपनी होमलैंड खो दी है, हमने अपनी होमलैंड खो दी है, और तुम जो एक हॉर्स के पीछे इतना वो कर रहे हो, रो रहे हो. एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरे? Till I want you to promise not to take it back until I learn to write. Now John replied to Khosrow that he would not bother as he lives in a city, but his country was of no, but his card was of no good without his horse. See, actually students, this Surrey means a light four-wheeled carriage with two seats facing forward. यानी वो एक जो कहते हैं ना वो घोड़ा गाड़ी जो होती है. तो वो बोलता है कि वो क्योंकि वो तो सिटी में रहता है. अब अंकल खॉसरफ को वो बोलता है कि तुम तो सिटी में रहते हो, तुम्हारा क्या, लेकिन मेरी तो जो हॉर्स कार्ट है वो बेकार है. जब मेरी सरी तो बेकार है जब तक हॉर्स नहीं है मेरे पास. खॉसरफ शाउटेड दैट ही मस्ट नॉट पे एनी अटेंशन टू इट. अब खॉसरफ एज यूजुअल दोबारा उस पर चिल्लाता है कि कोई ऐसी कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है.
John told him that he walked down 10 miles to come here. Khosrow shouted that he has legs to it, that he has legs, to which John said his left leg was hurt. अब वो आगे जॉन जो है जॉन बायरो खसरव को बोलता है कि अरे 10 मील दूर मतलब 10 माइल्स वो चल करके आया है इधर उनको मिलने के लिए। तो खसरव बोलता है अरे तुम्हारे पास टांगे हैं ना, तो क्या हो गया अगर तुम चल के आए हो। तो इस पर जो है जो जॉन बायरो है वो बोलता है उसकी जो लेफ्ट लेग है वो तो हर्ट हुई हुई है। Khosrow again tried to shut him down by saying that he should not pay any attention to it. John shared that the horse cost him $60. अब खॉसरोव आगे फिर से बताता है कि यार ठीक है ना, तुम्हारी टांग में चोट लगी हुई है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, उसको जो अटेंशन देने की कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है। इस पर जो है जॉन उसको बताता है कि वो जो वाइट हॉर्स जो उसका खो गया है वो $60 का था। Khosrow said that he would spit on the money, after which John got up and went away slamming the door. अब Khosrow देखो, he was so arrogant and he was such an irritating person. Khosrow बोलता है कि मैं तो थूकूं भी नहीं उन पैसों पर, ऐसे पैसों पर, $60 पे तुम रो रहे हो, मैं तो थूकूं भी ना इतने पैसों पर। उसके बाद जॉन गॉट एंग्री, जॉन बहुत वो भी अनॉयड हो जाता है और वो एकदम दरवाजे को पटकता हुआ बाहर चला जाता है उनके घर से। Aram's mother told him that John had a gentle heart as he was homesick and he was such a large man. अब बोलता है कि उसको अपने घर, क्योंकि वो अपने घर से दूर रहता था, उसको अपने घर की याद आती थी। आरम आगे अंकल खसरव को बताती है कि जॉन एक अच्छा आदमी, एक भला आदमी है। Aram went to Murad. He was sitting under a peach tree talking to a robin bird. He was repairing the wing that was hurt. Aram told him about John Byro and how he visited their house and he wanted his horse. Aram asked him not to return the horse until he learns to ride it. अब आरम जो है मुराद के पास जाता है, वो बैठा हुआ नीचे, एक रॉबिन बर्ड का नाम है, रॉबिन एक टाइप की बर्ड होती है, उसको बैठा हुआ उसके विंग्स को वो ठीक कर रहा था, बिकॉज उसके विंग्स को कुछ नुकसान हुआ था, कुछ चोट लगी हुई थी उसके विंग्स पर। तो उसको वो देख कर के पहले तो इस आरम जो है वो हैरान भी होता है। अब आगे वो उससे पूछेगा अभी मुराद से, आगे वो ये बोलेगा कि ही हैज़ अ वे विद रॉबिन बर्ड्स ऑल्सो। तो वो जो है उसको जॉन बायरो के बारे में बताता है आरम कि ऐसे ऐसे वो घर पर आए थे और उन्होंने अपने खोए हुए हॉर्स के बारे में भी बात करी। तो आरम उसको बोलता है, आरम आगे आरम उसको ये भी बोलता है कि बिल्कुल घोड़ा तब तक वापस नहीं करना जब तक कि वो सीख नहीं जाए हॉर्स राइडिंग। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, टिल लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद farmers. अब मुराद told आरम that it will take him a whole year to learn to ride a horse. अब क्योंकि वो आरम जो है मुराद को बोलता है ना कि अभी तब तक हॉर्स वापस नहीं करना जब तक वो हॉर्स राइडिंग नहीं सीख ले। तो मुराद बोलता है अरे तुम्हें तो कम से कम 1 साल लग जाएगा सीखने में। आरम said they could keep him for a year then. अब आरम बड़े आराम से बोलता है कोई बात नहीं, हम 1 साल के लिए रख लेंगे वो हॉर्स। Murad stood up on his feet and shouted at him about encouraging him to be a thief in spite of being a member of the Garogalanian family. इस पर देखो आयरनी देखिए आप, मुराद उठ करके उस पर चिल्लाता है, खड़ा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है कि तुम क्या मुझे चोरी के बारे में, मतलब चोर बनने के लिए कह रहे हो, तुम थीफ बनने के लिए कह रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि हम लोग गैरोगलेनियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं। He declared that the horse should go to his true owner. Aram asked, when would they have to return the horse? To which Murad said in 6 months. अब देखो आरम बोलता है कि ठीक है अब फिर बताओ कि कब वापस कर सकते हैं हम, कब तक वापस कर सकते हैं। इस पर मुराद बोलता है 6 महीने के अंदर अंदर इसके जो इसका जो मास्टर है, जो इसका ओनर है, उस तक हमें हॉर्स को पहुंचाना है वापस। He threw the bird into the air. It almost fell twice but flew at last. For the next 2 weeks they both would take the horse out of the barn and ride it. But every morning the horse would throw Aram and run away whenever he tried to ride it. अब नेक्स्ट 2 वीक्स यानी अगले 2 वीक्स के लिए वो लोग फिर से वैसी जैसे मॉर्निंग में हॉर्स राइडिंग के लिए जाते थे, बांध से वो लेकर के आते थे और फिर वापस उसको वहीं छोड़ाते थे। बट एवरी मॉर्निंग जैसे पहले की तरह आराम को हमेशा डेली के डेली जो है हॉर्स वो अपने ऊपर से गिरा देता था जब भी वो राइड करने की कोशिश करता था। He still hoped he would learn to ride it the way his cousin did. Once on the way to the deserted vineyard to hide the horse again, they met John Byro, who was on his way to town. Murad insisted on talking to him as he had a way with farmers. अब वैसे ही एक दिन
वो लोग वापस छोड़ने जा रहे थे डिजर्टेड वाइनयार्ड में जो बांध था वहाँ पर हॉर्स को बांधने के लिए जा रहे थे वो लोग छोड़ने के लिए। रास्ते में उन्हें जॉन बायरो मिलता है, वो वही जॉन बायरो जिसका वाइट हॉर्स खो गया होता है। लेकिन जो मुराद है वो इंसिस्ट करता है आराम से कि उसको बात करने दो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज़ अ वे विद फार्मर्स, यानी उसको फार्मर से अच्छे से बात करनी आती थी। तो वो इंसिस्ट करता है मुराद कि मैं बात करूँगा जॉन बायरो से। Now coming up to the next paragraph. Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. Till, good day, my young friends. Murad, wished him good morning, and Byro saw the horse carefully. अब क्योंकि उनके साथ वो हॉर्स था, मुराद जब उसको गुड मॉर्निंग विश करता है जॉन बायरो को, जॉन बायरो ध्यान से वो हॉर्स को देखता है. Byro wished them back and asked the name of the horse. Murad said, my heart, इन आर्मेनियन लैंग्वेज. अब जब बायरो जॉन बायरो से पूछता है कि इस आपके हॉर्स का नाम क्या है, तो मुराद उसको क्या आर्मेनियन लैंग्वेज में बोलता है, माई हार्ट. बायरो कॉम्प्लीमेंटेड दैट इट वॉज अ लवली नेम फॉर अ लवली हॉर्स. ही swore that it was his horse that was stolen weeks ago. He asked if he could look into his mouth. After looking from tooth to tooth, it said it was his horse if he didn't know his parents. अब जॉन बायरो को थोड़ा सा मतलब शक भी होता है, वैसे वो कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट करता है उसको कि बहुत अच्छा नाम इस सुंदर से हॉर्स के लिए, बहुत ही प्यारा सा नाम है. और वो कहता है पता नहीं क्यों बिल्कुल उसको लगता है, वो उनको बताता है कि ये उसके हॉर्स जैसा, वाइट हॉर्स जैसा, जो कि कुछ हफ्तों पहले उसके यहाँ से चोरी हो गया था. फिर वो उनसे परमिशन मांगता है, क्या वो उसको उसके माउथ के अंदर अच्छे से देख सकता है. वो मतलब एक एक उसका टूथ, एक एक दांत उसका देखता है, और फिर वो बोलता है ये तो बिल्कुल बिल्कुल डुप्लीकेट, बिल्कुल उसका हॉर्स है. लेकिन आगे वो बोलता है वो मान जाता है कि उसी का हॉर्स है अगर वो उसके पेरेंट्स को ना जानता होता. ऐसा उसने क्यों बोला? बिकॉज ऑल ऑफ देम बिलोंग टू आरम एंड मुराद एंड देयर फैमिलीज बिलोंग टू गैरोगलेनियन फैमिली. और उनकी जो गैरोगलेनियन ट्राइब है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए जाने जाते थे. इसीलिए वो बोलता है कि मैं मान लेता कि मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता. He said the horse was a twin of his horse. He further said that his family is all for honesty, but the horse looks just like the one he lost. A man who is suspicious would easily believe his eyes and not his heart. He wished them and went away. अब वो बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ और तुम्हारी फैमिली जो है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैं बता दूँ बिल्कुल उसका ट्विन लगता है ये मेरे हॉर्स के जैसा. अब उसको वो बहुत कहते हैं ना, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. अब जिस आदमी के मन में जो कहते हैं ना शक पैदा हो जाता है, तो अपनी आंखों पर ज़्यादा विश्वास करता है, जो उसको दिखता है वो उस पर ज़्यादा विश्वास करता है, ना कि अपने दिल पर. उसके अंदर अब जो था वो सस्पिशियस हो चुका था, उसको शक हो गया था कि उसी का ही हॉर्स है. अब वो आगे उन्हें विश करता है एंड देन ही वेंट अवे. नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पैराग्राफ which starts from good day John Byro, my cousin Murad said, till your horse has been returned, pay no attention to it. Now students, let me explain the last paragraph of this chapter. Here Murad wished him back. Him here is John Byro. The next morning they took the horse back to John Byro's vineyard and put it in his barn. अब नेक्स्ट डे क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब जॉन बायरो को शक हो गया है, तो वो मुराद जो है ये दोनों जॉन बायरो के वाइनयार्ड में छोड़ाते हैं, अगले ही दिन हॉर्स को छोड़ाते हैं. द डॉग्स फॉलोड देम अराउंड विदाउट मेकिंग एनी साउंड. मुराद रिप्लाइड दे वुड नॉट बार्क एट देम सिंस ही हैड अ वे विद डॉग्स. अब देखो वो यहाँ पे दोबारा बोलता है, अब क्योंकि आराम बोलते वो डॉग्स जो है उनको फॉलो करते हैं, जो डॉग्स थे उनको जब वो हॉर्स छोड़ने जाता है उसके बाद में डॉग्स भी उनको फॉलो करते हैं. जब आराम घबराता है तो मुराद उसे बोलता है कि नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं, वो हम पर भौंकेंगे नहीं, बिल्कुल उन्हें कोई हार्म नहीं वो हमें करेंगे, बिकॉज मुझे टैकल करना आता है, आई नो डॉग्स वेरी वेल. मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, then pressed his nose into the horse's nose. He patted him and they went away. That same afternoon, John came to Aram's house in his surrey and showed his mother his horse that returned. He said he didn't know what to think as the horse is much stronger now with a better temper. अब जब क्योंकि अब उसके पास काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट इट वॉज a month that Murad had that horse with him.
अब मुराद के पास तकरीबन 1 महीने से वो हॉर्स था, तो उसको थोड़ा लगाव हो गया था उसके साथ। जब वो जॉन बायरो के बांध में उसको छोड़ने जाता है तो उसको खूब प्यार भी करता है, उसके नेक पर अपने आर्म्स डालता है, अपने नोज़ को उसके नोज़ के साथ वो प्रेस करता है, और उसके बाद उसे पैट करके वो उसे वहाँ पर छोड़ करके चला जाता है। और उसी दिन दोपहर को जॉन बायरो आरम के घर पर आता है, और अब सरी में आता है वो अपनी हॉर्स कार्ट, तो वो उसके साथ आता है और उसकी मदर को दिखाता है, देखो उसका जो हॉर्स है वो वापस आ गया है। और आगे वो ये भी बताता है कि जब 1 महीने बाद जब उसका हॉर्स वापस आया है तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका टेम्पर भी बेटर है, यानी वो पहले से अच्छे से बिहेव कर रहा है, और अच्छे से बिहेव कर रहा है। ही थैंक्ड गॉड। Uncle Khosrow was in the parlor again, shouted irritated. Quiet, man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it. Now, अब ये एक फ़नी नोट पर ये चैप्टर का एंड हो रहा है। अंकल खॉसरॉफ एज ऑलवेज अपने सेम इन अ यूनिक वे, जो उनका एक सेट वो था, उन्होंने बोला मैन क्वाइट मैन, अरे चुप रहो, तुम्हारा हॉर्स ही तो वापस आया है, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट। So this is, student, this is all for this chapter. I hope you people have understood this chapter well. Thank you, students.